بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جینا ایک نئے انداز سے جینے لگی، پرانا علاقہ اور پرانا محلہ چھوڑ کر جوہو کے ساحل پر ایک شاندار بنگلے میں آ گئی۔ سیٹھ کیشو ناتھ نے اسے نقد 1 کروڑ روپے دیے تھے، پھر جوہو کا وہ شاندار بنگلہ بھی اس کے نام کرنے والا تھا۔ اس بنگلے میں 2 بہت مہنگی کاریں تھیں اور ایک معمولی سی کار ملازموں کے استعمال کے لیے موجود تھی۔ اس کی خدمت کے لیے بنگلے کے اندر ایک ملازمہ، باہر ایک ڈرائیور اور 1-2 ملازم موجود رہتے تھے۔ وہ بھی 16 برس کی تھی۔ ایسی کسی کم سن لڑکی کو اتنی ڈھیر ساری دولت اور عیش و آرام ملتا تو ہنستی بولتی، ناچتی گاتی اور ہوا میں اڑتی پھرتی، لیکن وہ اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ یہ بات اسے ذہنی طور پر الجھا رہی تھی کہ وقتاً فوقتاً کبریا کے بارے میں کیوں سوچنے لگتی ہے۔ وہ ہر رات اسے خوابوں میں دیکھنے لگی تھی۔ کوئی رات ایسی نہیں جاتی تھی کہ وہ خواب میں نہ آتا۔ پھر وہ اس انداز سے آتا تھا کہ وہ سیر زدہ ہو جاتی تھی۔ جاگنے کے بعد بھی گھنٹوں اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اس کی عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ روزانہ درجنوں کی عزت مند اس سے ملنے آتے اور اپنی دکھ بری بپتا سناتے تھے، اپنی ضرورتیں اس سے پوری کروانا چاہتے تھے۔ وہ سب کی حاجت روائی کرتی تھی، لیکن اچانک بیٹھے بیٹھے کہیں گم ہو کر خلا میں تکنے لگتی تھی۔ اس کے عزت مند سمجھتے تھے کہ وہ اپنے دھیان گیان میں مصروف ہو گئی ہے، جبکہ وہ کبریا کے بارے میں سوچ رہی ہوتی تھی۔ اسے یاد آنے لگتا تھا کہ وہ خوابوں میں آنے والا کیسے کیسے اس کے پاس آ کر بھٹکتا رہتا تھا اور اسے بھٹکاتا رہتا تھا۔ وہ خلا میں تکتے وقت تصور میں وہ تمام مناظر دیکھتی رہتی تھی جو نیند کی حالت میں گزر جاتے تھے۔ جب وہ چونکتی تو اپنے سامنے عقیدت مندوں کا ہجوم دیکھتی اور جھیپ جاتی، باتیں بناتی۔ مجھے معاف کرنا، میں ذرا دھیان میں مصروف تھی۔ دھیان بھگوان کا بھی ہوتا ہے اور من مندر کے دیوتا کا بھی۔ وہ کبھی جھوٹ نہ بولنے والی ایسے وقت جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ جب وہ تنہائی میں ہوتی تو سوچ کے ذریعے سے پکارتی، کبریا تم کہاں ہو؟ آ جاؤ کبریا، اتنا نہ ستاؤ۔ اسے جواب نہیں ملتا تھا۔ وہ کہتی تھی، یہ نہ سمجھو کہ میں بالکل ہی نادان ہوں اور تمہاری ناراضگی کو نہیں سمجھ رہی ہوں۔ تم میرے اندر رہتے ہو، یہ میں دل کی گہرائیوں سے پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں۔ تم میرے پاس آنے والوں کے مسائل سنتے ہو اور میں جس طرح ان سے وعدہ کرتی ہوں وہ وعدہ تم اسی طرح پورا کرتے ہو، ان کے مسائل حل کرتے ہو، میری عزت رکھتے ہو، میرا مان بڑھاتے ہو۔ ایسے وقت کبریا اس کی سوچ میں کہتا، میں کبریا کو کیوں پکار رہی ہوں؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ میں ہندو ہوں، وہ مسلمان ہے۔ جب میں اتنا فاصلہ رکھ کر سوچتی ہوں تو پھر کیوں اسے خوابوں اور خیالوں میں دیکھتی ہوں اور سوچتی رہتی ہوں؟ وہ خیالوں میں نہیں آتا تو اس کو بے اختیار پکارنے لگتی ہوں۔ اس کی اپنی سوچ کہتی تھی، میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جب وہ شدت سے یاد آتا ہے تو میں بھول جاتی ہوں کہ میرا دھرم کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔ میں ہندوستانی ہوں، وہ پاکستانی ہے۔ ہم دونوں ایسے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے درمیان ابتدا سے ہی نفرت اور دشمنی چلی آ رہی ہے۔ وہ بری طرح الجھ کر سوچتی تھی، کوئی دھرم نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، سب ملک برابر ہوتے ہیں، ہر ملک میں انسان بستے ہیں، انسان کو انسان سے پیار کرنا چاہیے، مذہب اور دھرم کی دیوار اٹھا کر ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کبریا اس کے اندر رہ کر یہ خواہش پیدا کرتا رہتا تھا کہ وہ نت نئے ڈیزائن کے بہتر سے بہتر لباس پہنا کرے۔ پہلے تو وہ پہننا نہیں چاہتی تھی، پھر اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی کہ شاید کبریا کہیں سے چھپ کر اسے دیکھتا ہو، اس لیے اسے پہننا چاہیے۔ اس طرح زیورات پہننے اور بننے سنورنے کی خواہشیں جنم لیتی رہیں اور وہ ان پر عمل کرتی رہیں۔ وہ رفتہ رفتہ تبدیل ہونے لگی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی کہ وہ کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے وہ مٹی مٹی سی دھندلی سی دکھائی دیتی تھی، اب آئینے میں ایسی صاف اور شفاف نظر آتی تھی جیسے خوش رنگ تتلی نے اپنے تمام پر پھیلا دیے ہوں۔ وہ کسی تفریح گاہ میں جاتی تھی یا کسی تقریب میں پہنچتی تھی تو وہاں بھی اس کا دھیان بٹا رہتا تھا۔ اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی تھیں۔ اس کا دل کہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ نظر آ سکتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے شاپنگ سینٹر کی جیولری شاپ میں تھی اور ہیروں کا ایک سیٹ خرید رہی تھی۔ جب وہ خریداری کے بعد دکان سے باہر آئی تو دور ایک طرف دیکھتے ہی چونک گئی، خوشی سے کھل گئی۔ اسے کبریا نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف جانے لگی، اگرچہ اس نے ایک ہی بار اسے دیکھا تھا۔ اس کی خوبروئی، اس کا قد، اس کی شخصیت اس کے حواس پر چھائی ہوئی تھی، لیکن چہرے کے نقوش اسے اچھی طرح یاد نہیں تھے۔ اس نے خوابوں اور خیالوں میں جیسا چہرہ دیکھا تھا ویسا ہی وہ دکھائی دے رہا تھا اور وہ اس چہرے کی طرف کشاں کشاں جا رہی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا، کبریا۔ وہ جوان آگے جا رہا تھا، اس نے شاید اس کی آواز نہیں سنی یا پھر اس کا نام کبریا نہیں تھا۔ جینا نے اور قریب ہو کر اسے پکارا، کبریا۔ پھر اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ رک گیا، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک دم سے اسے پہچانتے ہوئے بولا، ارے آپ سواگن دیوی، یہ آپ ہیں؟ جینا نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام من موہن ہے۔ یہ میرے بڑے باغ ہیں کہ آپ نے مجھے چھو لیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس جاؤں گا اور ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کروں گا، مجھے کوئی نوکری دلا دیں۔ میں بے روزگار ہوں اور بہت مشکلوں میں ہوں۔
BA पास हूँ, आपने मुझे छू लिया है। अब मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं ज़रूर मुझे नौकरी मिलेगी। वो उसे छूकर पछता रही थी, सोच रही थी कि मैं इसे नौकरी कहाँ से दिलाऊंगी। ये इसका मसला था कि नौकरी कैसे दिलाएगी, लेकिन इसे अपनी देवी होने का भरम रखना था। इसने हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के अंदाज में कहा, जाओ, भगवान ने चाहा तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। ये कहकर वो वहां से पलट गई, मायूस होकर वहां से जाने लगी। जिसे किबरिया समझा था वो कोई और निकला था। इसका नाम मनमोहन था। वो बेरोजगारी से इस कदर तंग आ गया था कि वो खुदकुशी करना चाहता था। फिर उसने सुहागन देवी का नाम सुनकर सोचा था कि एक बार इसके दर्शन करेगा, शायद इस देवी की कृपा से उसे नौकरी मिल जाए। इस नौजवान के घर में बूढ़े माँ बाप थे, एक जवान बहन थी। कभी कभी फाके करने की नौबत आ जाती थी। वो शर्मिंदा हो जाता था कि जवान होकर उन्हें 3 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता। जीना ने उसे छूकर इसके अंदर बड़ा हौसला पैदा कर दिया। इसे पूरा यकीन था कि अब जरूर इसके बुरे दिन दूर हो जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। वो सोचता हुआ शॉपिंग सेंटर से बाहर आया तो किबरिया ने इसका रास्ता रोक लिया। फिर इससे पूछा, क्या तुम्हारा नाम मनमोहन है? इसने सवालिया नजरों से उसे देखा, फिर कहा, हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो? ये मैं नहीं जानता, मेरे अंदर एक देवी की आवाज आई थी। वो कह रही थी कि मनमोहन नामी एक नौजवान बेरोजगार है, बहुत मायूस है। अगर उसे नौकरी ना मिली तो वो आत्महत्या कर लेगा, लिहाजा इसे नौकरी दे दी जाए। फिर किबरिया ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर देते हुए कहा, कल सुबह उस एड्रेस पर पहुंच जाओ, तुम्हें मुलाजमत मिल जाएगी। तुम्हें हर माह 10,000 रुपए बतौर तनख्वाह मिलेंगे। वो एकदम से खुश होकर इसके कदमों में झुक गया। किबरिया ने इसे बाजुओं में थाम कर उठाते हुए कहा, मैं ना देवी हूँ ना देवता हूँ, मुझे जैसा हुक्म मिला था मैं इस पर अमल कर रहा हूँ। और ये 10,000 रुपए रखो, जो कर्ज है इसे अदा करो। घर में राशन ले जाओ और अपने लिए एक अच्छा सा लिबास बनवाओ। किबरिया से रुखसत होकर दूर एक जगह आया। मुंबई में वो एक बहुत बड़े दौलतमंद कारोबारी की हैसियत से पहचाना जाता था। वहाँ इसका नाम हमजा था और वो जर्मनी की एक दवासाज कंपनी में शेयर होल्डर था। इसने मोबाइल फोन के जरिए अपने एक दवा फरोख्त करने वाले होलसेलर को मुखातिब किया, फिर कहा, मैंने एक नौजवान मनमोहन को तुम्हारा विजिटिंग कार्ड दिया है, वो कल सुबह मुलाजमत के लिए आएगा, उसे 10,000 रुपए माहाना पर मुलाजिम रख लो। दूसरी तरफ से कहा, यस सर, आपका हुक्म है तो हम इसे जरूर रख लेंगे। किबरिया फोन बंद करके फिर ख्याल खोनी के जरिए जीना के अंदर पहुंच गया। वो एक महंगी और शानदार कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वो दाएं बाएं खिड़की के बाहर गुजरते हुए मनाजिर देख रही थी। ये उसकी आदत होती जा रही थी कि वो नजरें जहां जाती थी किबरिया को ढूंढती थी। वो अपने अकीदतमंदों के मसाइल सुनती थी, फिर तस्वुर जाना में खो जाती थी। मसाइल तो किबरिया हल किया करता था। वो अपने शानदार बंगले के सामने पहुंची। दरबान ने आहनी गेट को खोला। इसकी कार अहाते के अंदर दाखिल हुई। वहाँ कई गाड़ियां खड़ी हुई थीं। बहुत से अकीदतमंद इधर उधर खड़े हुए थे या बैठे हुए थे। इसकी कार को देखते ही हाथ जोड़कर सर झुकाने लगे। एक मुलाजिम ने इसकी कार का पिछला दरवाजा खोलते हुए कहा, देवी जी, पुलिस वाले आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया है। वो कार से उतरकर सोचती हुई अंदर आई कि पता नहीं आज पुलिस वाले क्यों आए हैं। क्या ये लोग भी मेरे अकीदतमंदों में से हैं? मुझे तो पुलिस वालों से बड़ी वहशत होती है। वो ड्राइंग रूम में आई तो एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक इंटेलिजेंस का अफसर उसे देखकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। फिर एक ने कहा, हम बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। वो इन्हें बैठने का इशारा करते हुए बोली, आप बैठ जाएं, फरमाएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। वो सब एक दूसरे के सामने सोफों पर बैठ गए। इंटेलिजेंस के अफसर ने कहा, आप बुरा ना माने, आपके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं, बल्कि इल्जामात हैं। उसने पूछा, कैसे इल्जामात हैं? इंस्पेक्टर ने कहा, पहले तो आप ये बताएं कि चंद रोज पहले आप एक बहुत ही पसमानदा इलाके में थी, गरीबों के मोहल्ले में रहती थी, अचानक इतने शानदार बंगले में कैसे आ गईं? इंटेलिजेंस के अफसर ने कहा, हमारे जासूसों ने बताया है कि आप हजारों और लाखों रुपए गरीबों में दान करती हैं। जरूरतमंदों को आप इतनी बड़ी रकमें कहाँ से देती हैं? आपकी आमदनी के जराए क्या हैं? वो बोली, हमारे मुल्क में कितने ही लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं। आपने कभी इनके खिलाफ कार्रवाई की है कि उनके पास अचानक इतना धन कहाँ से आ जाता है और वो कैसे धनवान बन जाते हैं? आप दूसरों की बात को छोड़ें, अपनी बात करें। आपके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है? ये तो आप जानते ही होंगे कि ये बंगला किशुनाथ का है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए और ये बंगला मुझे दिया है। मेरे पास जो कीमती गाड़ियां हैं सब उनकी ही दी हुई हैं। हमें ये मालूम है और हम इस हद तक मुतमिन हैं, लेकिन जिस अंदाज में आप लक्ष्मी देवी बनी हुई हैं और सबको धन बांटती रहती हैं, इसके लिए और अरबों और खरबों रुपए भी कम पड़ते हैं। वो बोली, मुझ पर लक्ष्मी देवी की कृपा है। मैं नहीं जानती कि वो कैसे कैसे इस राय से मेरे पास धन पहुंचाती है। अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो पहले ये साबित करें कि मेरी आमदनी के जराए नाजायज हैं, गैर कानूनी हैं।
मैं स्मगलिंग करती हूँ, बैंक में डाके डालती हूँ, कोई ऐसा जुर्म साबित कर दें, फिर मुझे गिरफ्तार करके यहाँ से ले चलें। इंस्पेक्टर ने कहा, एक बहुत बड़े सरमायादार ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस सरमायादार का नाम नंदलाल भंडारी है। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके घर में एक नौजवान मुलाजमा थी। उस मुलाजमा के जरिए आपने इसके घर में डकैती कराई है। इसके बेडरूम के सेफ में 1,80,00,000 रुपए थे। जिस रोज वो मुलाजमा इसकी नौकरी छोड़कर गई, इसी रोज वो रकम चोरी हो गई। जीना ने कहा, 2 रोज पहले की बात है। नंदलाल भंडारी इस मुलाजमा की इज्जत लूटना चाहता था। मुलाजमा ने फोन के जरिए मुझसे कहा कि वो इसे एक कमरे में बंद करके गया है और अभी आकर इसकी इज्जत लूटने वाला है। आप ये कहना चाहती हैं कि जहां इसे बंद किया गया था वहां टेलीफोन था और इसने फोन के जरिए आपको इत्तला दी थी। फिर आपने क्या किया था? जब वो इस कमरे में आया तो मैंने इसी फोन के जरिए इसे मुखातिब किया था। पहले तो उसे समझाया कि वो कोई पाप ना करे, एक बेगुनाह लड़की की आबरू ना लूटे। जब वो मेरा मजाक उड़ाने लगा, मुझे देवी नहीं फ्रॉड कहने लगा, तो मैंने उसे बद्दुआ दी थी कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो। जिस दौलत पर वो घमंड करता है वो दौलत भी उसके पास ना रहे। इंस्पेक्टर ने कहा, और इस तरह वो दौलत ना रही। उसके 1,80,00,000 रुपए चोरी हो गए। ये आप बता सकती हैं कि वो रकम कैसे चोरी हुई? वो मुलाजमा बहुत कमजोर थी, उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन अचानक इतना कैसे ताकतवर हो गई कि उसे जख्मी करके उसके सेफ से रकम निकाल कर ले जा सके। जीना ने कहा, वो कमजोर मुलाजमा अचानक ताकतवर नहीं बनी थी। दरअसल नंदलाल भंडारी नशे में धुत होकर इतना कमजोर हो गया था कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वो उसे जख्मी करके भाग गई। अब वो लड़की मेरे पास नौकरी कर रही है। आप उसके खिलाफ ये जुर्म साबित कर दें कि उसने इतनी बड़ी रकम चुराई है तो मैं इसको आपके हवाले कर दूंगी। हम इसे गिरफ्तार करके ले जाएंगे और अपने तौर पर सारी हकीकत मालूम कर लेंगे। वो जरूर सच बोलेगी और अपने जुर्म का इकबाल कर लेगी। मैं ये बखूबी जानती हूँ कि आप लोग किस तरह इकबाल जुर्म कराते हैं। मुझे अफसोस है आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकेंगे। मैं कानूनी लड़ाई लड़ना जानती हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने इस लड़की की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा ली है। फिर इसने अपनी एक तालीम याफ्ता मुलाजमा से कहा, जमानत के कागजात ले आओ। मुलाजमा ने हुक्म की तामील की। कुछ देर बाद वो जमानत के कागजात ले आई और इन्हें इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया। वो इन्हें पढ़ने के बाद बोला, आपने बड़ी होशियारी दिखाई है, लेकिन उसके 1,80,00,000 रुपए कहाँ चले गए? आप पुलिस वाले होकर मुझसे पूछ रहे हैं। जिसने चुराए हैं उससे पूछें और जो चोर है उसे पकड़ने की कोशिश करें। इंटेलिजेंस के अफसर ने कहा, देवी जी, आपके खिलाफ एक शुबा किया जा रहा है और वो शुबा हकीकत से करीब है। मैं भी तो सुनूं कि मेरे खिलाफ किस किस्म का शुबा किया जा रहा है। अफसर ने कहा, आप टेलीपैथी जानती हैं या फिर कोई टेलीपैथी जानने वाला आपके दिमाग में आता जाता रहता है। ये सुनते ही इसने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। इनसे गुफ्तगू के दौरान में वो थोड़ी देर के लिए किबरिया को भूल गई थी। टेलीपैथी के जिक्र पर वो एकदम से याद आया तो दिल तेजी से धड़कने लगा। इंटेलिजेंस के अफसर ने पूछा, आपने आंखें क्यों बंद कर ली? खामोश क्यों हैं? वो आंखें खोलकर इसे देखते हुए बोली, तुम दिन रात पूजा पाठ करते हो, कभी तुमने दिल की गहराइयों से ध्यान ज्ञान में वक्त गुजारा है? अगर ऐसा नहीं किया है तो तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे कि जो भगवान के भगत होते हैं वो दिन रात इसी के ध्यान में गुम रहते हैं। वो अपने अंदर आवाजें सुनते हैं। वो आवाजें भगवान की होती हैं या फिर भगवान का कोई अवतार इनके अंदर बोलता है और रहनुमाई करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसके साथ क्या पेश आने वाला है, किसकी तकलीफ दूर हो सकती है और किस पापी की तकलीफ बढ़ सकती है। इसने दोनों को देखा, फिर एक तवक्कुफ से बोली, अगर इसी को टेलीपैथी कहते हैं तो फिर बेशक मैं टेलीपैथी जानती हूँ। या फिर भगवान का कोई अवतार मेरे अंदर आकर बोलता है। क्या तुम लोग इसे बोलने से रोक सकते हो? भगवान को चैलेंज कर सकते हो? वो दोनों उठकर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने कहा, हम अभी आपसे बहस नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी ये साबित कर देंगे कि आप टेलीपैथी जानती हैं या फिर किसी टेलीपैथी जानने वाले से आपका ताल्लुक है। वो दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हुए चले गए। इनके जाने के बाद बाहर इंतजार करने वाले एक एक करके इसके पास आने लगे और अपना दुखड़ा सुनाने लगे। वो इनके मसाइल सुनती थी, लेकिन माली इमदाद सिर्फ इनको ही देती थी जो सही मानों में मुस्तहिक होते थे, और जो फ्रॉड होते थे या कामचोर होते थे या नशा करने के लिए झूठ मूठ अपनी दुख बीमारी का रोना रोते थे, वो इनकी मदद नहीं करती थी। सख्ती से ताकीद करती थी कि वो झूठ और फरेब से बाज आ जाएं, वरना भगवान की तरफ से सख्त सजाएं मिलेंगी। कौन झूठा है, कौन सच्चा है और कौन फरेब दे रहा है, ये जीना नहीं जान सकती थी। किबरिया इसके पास आने वालों के हालात बढ़कर मालूम करता था और इसके मुताबिक इसकी रहनुमाई करता था, और इसके दिल की गहराइयों से आवाज निकलती थी कि मेरा वो चाहने वाला मेरे अंदर मौजूद है। ए भगवान, मैं इसे कैसे मनाऊं, कैसे इसकी नाराजगी दूर करूं, वो मुझसे कब मिलेगा? एक बूढ़ी औरत ने इसके पास आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, स्वागन देवी, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, मैं हर तरह से खुशहाल हूँ, लेकिन अचानक मेरे नौजवान बेटे को पता नहीं कैसे दौरे पड़ने लगते हैं। मैंने बहुत इलाज कराया, टूने टोटके भी कराए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
वैसे तो वो नॉर्मल रहता है, लेकिन कभी कभी अचानक दौरा पड़ने लगता है और उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। मैं माँ हूँ, उसकी ये हालत देख नहीं सकती। कृपा करके अभी मेरे साथ चलो। थोड़ी देर पहले उसे दौरा पड़ा था, वो बेसुध पड़ा हुआ है। जीना ने कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम देख रही हो कि यहाँ कितने ज़रूरतमंद बैठे हैं। मैं भी इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। ये वादा करती हूँ कि शाम 6 बजे तक तुम्हारे साथ जा सकूंगी। वाकई वो परेशान थी, वहीं बैठी रही। तकरीबन 2 घंटे बाद जीना को फुर्सत मिल गई। तमाम ज़रूरतमंद चले गए। जीना ने कहा, अगरचे मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत को समझ रही हूँ। आओ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो उसकी कार में बैठकर रवाना हो गई। इस औरत की कोठी गेटवे ऑफ इंडिया के करीब थी। वो तकरीबन 1 घंटे में वहां पहुंच गए। इस शानदार कोठी के बाहर मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स का पहरा था। इस औरत ने बताया कि इसका पति बरसरे इक़्तिदार पार्टी का बहुत बड़ा लीडर है। अगर सुहागन के गीताओं या दुआओं से इनका बेटा सेहतमंद हो जाएगा और इसको दौरा नहीं पड़ेगा तो वो इसे माला माल कर देगी। जीनास के साथ कोठी के अंदर आई। कीमती सामान से आरास्ता की हुई कोठी को देखकर पता चलता था कि वो सियासतदान दोनों हाथों से मुल्की खजाना लूट रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी राजा महाराजा के महल में आ गई है। वो औरत इसे एक बेडरूम में ले आई। वहाँ एक बेड पर कोई शख्स लेटा हुआ था। इसका मुंह दूसरी तरफ था, शायद वो नींद में था। इस औरत ने कहा, बेटे सुहागन देवी आई हैं, तुम इससे बातें करो, मैं अभी आती हूँ। इसने कमरे से बाहर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। वो शख्स बिस्तर पर से उठ गया। वो कोई नौजवान नहीं था, एक बूढ़ा शख्स था। इसे देखकर मुस्कुराते हुए तारीफी अंदाज में बोला, वाह वाह सुहागन देवी, तुम्हारे हुस्न शुबाब की जितनी तारीफें सुनी थी तुम इससे भी ज्यादा हो। सुना है लड़की होते हुए भी लड़की नहीं हो। जीना खामोशी से अपनी जगह खड़ी रही। वो बिस्तर के सिरे पर खिसक कर बैठ गया। उसे सर से पांव तक देखते हुए बोला, जबकि भरपूर जवान लड़की दिखाई देती हो। तजुर्बे है कि तुम क्या हो, जब से सुना है तुम्हारे लिए दिलचस्पी बढ़ गई है। तुम्हें अपने बाजुओं में भर के सर से पांव तक देखने के लिए दिल मचल रहा है। वो पीछे हटकर बोली, मुझसे ऐसी गंदी बातें मत करो। जिसकी शामत आ जाती है वो मुझे हाथ लगाने के लिए मचलता है। हाँ, मैंने भी ये सुना है, मुरलीधर तुम्हारा दूर का रिश्तेदार था, मेरा पालतू गुंडा था। वो तुम्हारे बदन से खेलना चाहता था, फिर तुमने जाने कैसे उसे अपाहज बना दिया। उसका एक हाथ और एक पाँव हमेशा के लिए बेकार हो गए। वो बोली, तुम्हें इसके अंजाम से सबक सीखना चाहिए। आज या तो मैं सबक सीखूंगा या तुम्हें सिखा कर रख दूंगा। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इन्हें शुबा है कि तुम टेलीपैथी जानती हो या कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे अंदर मौजूद रहता है और वो तुम्हारी हिफाजत करता है। जो तुम्हारे करीब आता है वो उसे अपाहज बना देता है या मार डालता है। तुम सब ख्वाह मुझ पर शुबा कर रहे हो। मैं टेलीपैथी नहीं जानती और ना ही किसी टेलीपैथी जानने वाले को जानती हूँ। सांच को आंच क्या है। मैंने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डीजी से कहा है कि मैं तुम्हें अपनी कोठी में बुलाकर आजमाऊंगा। तुम्हारे बारे में अब तक की रिपोर्ट ये है कि जब तुम्हारी जान पर बन आती है या तुम्हारी आबरू खतरे में पड़ती है तो तुम किसी न किसी गैर मामूली हैरत अंगेज तरीके से बच निकलती हो। मैं देखूंगा कि तुम किस तरह अपनी इज्जत बचाकर यहाँ से जाओगी। मैं एक ही बात जानती हूँ, भगवान मेरी मदद करता है और मैं बचकर निकल जाती हूँ। यही मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान तुम्हारी किस तरह मदद करता है। अगर वो मेरे दिमाग में आकर मुझे कमजोर बनाएगा, मेरे दिमाग को अपने काबू में करके मुझसे उल्टी सीधी हरकतें कराएगा या मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर करेगा तो फौरन ही पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को मेरे हालात का इल्म हो जाएगा। वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं और कानों से हेडफोन लगाए हमारी यहाँ की तमाम बातें सुन रहे हैं। वो परेशान होकर इसे देखने लगी। वो बोला, अगर टेलीपैथी जानती हो तो चलो इसका मुजाहरा करो। अगर नहीं जानती हो तो अपने टेलीपैथी जानने वाले को बुलाओ। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो मैं तुम्हारी इज्जत से खेलने में कामयाब हो जाऊंगा। तो हमें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे साथ टेलीपैथी जानने वाला कोई चक्कर नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। किब्रिया अगर इस हवसप्रस्त सियासी लीडर से जीना की आबरू बचाता तो ये साबित हो जाता कि इसके पीछे कोई टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है। फिर तो वो फराद होगा या इसका कोई ख्याल खो नहीं करने वाला जरूर होगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि टेलीपैथी के राज को छुपाने के लिए किब्रिया इसकी आबरू की हिफाजत ना करता। हिफाजत तो करना ही थी, लेकिन दामन बचाकर।